एजेकियल चैप्टर 27-28 हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। एजेकियल 27 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से 27-28। रिबांता शबियांतु खंबरहा अल एकितीना रबहुम बरहा सियांतु खंबरहा। हमारी बुद्धि को बढ़ा परमेश्वर, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे, आत्मिक तरह से तेरे वचनों को स्वीकार कर सके और हम अज्ञानता से आज़ाद हो सके, हमारा नाश होने से बचा सके। हम अपने आप को तेरे रहस्य भेद समझने के बाद जो परमेश्वर हमारा विश्वास का दर्जा है, तुझसे प्राप्त करते हुए चलने का जो रास्ता है, हमें आसान करके दे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 27 chapter 1st verse पढ़ेंगे। The word of the Lord came again unto me, saying, Now, thou son of man, take up a lamentation for Tyrus, and say unto Tyrus, O thou that art situate at the entry of the sea, which art a merchant of the people for many isles, thus saith the Lord God, O Tyrus, thou hast said, I am of perfect beauty. Third verse say, and say unto Tyrus, O thou that art situate at the entry of the sea, which art a merchant of the people for many isles, thus saith the Lord God, O Tyrus, thou hast said, I am of perfect beauty. Thy borders are in the midst of the seas. Thy builders have perfected thy beauty. They have made all thy shipboards of fir trees of Senir. They have taken cedars from Lebanon to make masts for thee. Of the oaks of Bashan have they made thine oars. The company of the Ashurites have made thy benches of ivory, brought out of the isles of Chittim. Fine linen with embroidered work from Egypt was that which thou spreadest forth to be thy salt. Blue and purple from the isles of Elisha was that which covered thee. The inhabitants of Zidon and Arvad were thy mariners, thy wise mariners, thy wise men, O Tyrus, that were in thee, were thy pilots. The ancients of Gebal and the wise men thereof were in thee, thy caulkers, all the ships of the sea with their mariners, it's okay, were in thee to occupy thy merchandise. They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army. Thy men of war, they hanged the shield and helmet in thee. They set forth thy comeliness. The men of Arvad with thine army were upon thy walls round about, and the Gammadims were in thy towers. They hanged their shields upon thy walls round about. They have made thy beauty perfect. Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kind of riches, with silver, iron, tin and lead they traded in thy fairs. Javan, Tubal and Meshech, they were thy merchants. They traded the persons of men and vessels of brass in thy market. They of the house of Togarma traded in thy fairs with horses and horsemen and mules. The men of Dedan were thy merchants. Many isles were the merchandise of thine hand. They brought thee for a present horns of ivory and ebony.
Syria was thy merchant by reason of the multitude of the wares of thy making. They occupied in thy fairs with emeralds, purple, and broidered work, and fine linen, and coral, and agate. Judah and the land of Israel, they were thy merchants. They traded in thy market wheat of Minnith and Panag, and honey, and oil, and balm. Damascus was thy merchant in the multitude of the wares of thy making, for the multitude of all riches in the wine of Helbon and white wool. Dan also and Javan going to and fro occupied in thy fairs, bright iron, cassia, and calamus were in thy market. Dedan was thy merchant in precious clothes for chariots. Arabia and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs and rams and goats. In this were they thy merchants. The merchants of Sheba and Ramah, they were thy merchants. They occupied in thy fairs with chief of all spices and with all precious stones and gold. Haran and Canaan and Eden, the merchants of Sheba, Ashur, and Chalmad were thy merchants. These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords and made of cedar among thy merchandise. The ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast replenished and made very glorious in the midst of the seas. Thy rovers have brought thee into great waters. The east wind hath broke thee in the midst of the seas. Thy riches and thy fairs, thy merchandise, thy mariners and thy pilots, and thy caulkers and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war that are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee, shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin. 28 verse आगे. The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots, and all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea shall come down from their ships. They shall stand upon the land, and shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads. They shall wallow themselves in the ashes, and they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing. And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea? When thy wares went forth out of the seas, thou fearedst many people. Thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise. In the time when thou shalt be broken by the seas in the depths of the waters, thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall. All the inhabitants of the isles shall be astonished at thee, and their kings shall be sore afraid. They shall be troubled in their countenance. The merchants among the people shall hiss at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt be any more. 28 chapter 1st verse. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God, because thine
heart is lifted up, and thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God in the midst of the seas, yet thou art a man and not God. Though thou set thine heart as the heart of God, behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. With thy wisdom and with thy understanding, thou hast gotten the riches and hast gotten gold and silver into thy treasures. By thy great wisdom and by thy traffic hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast set thine heart as the heart of God, behold, therefore, I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations, and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness. They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? But thou shalt be a man and no God in the hand of him that slayeth thee. Thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers, for I have spoken it, saith the Lord God. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of the tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering of cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. ये सब लूसीफर के बारे में बताया जा रहा है, शैतान के बारे में बताया जा रहा है. वो पहले स्वर्गदूत रहा करता था परमेश्वर के वो स्वर्ग के अंदर. ओके, उसके वर्णन है ये सब. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities. देखो क्या लिखा है यहाँ पे देखो 17 वचन हिंदी में पढ़ेंगे तब आप देखना 17 और 18 वचन. By the iniquity of thy traffic, therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. All they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more. Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Zidon, and prophesy against it, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Zidon, and I will be glorified in the midst of thee, and they shall know that I am the Lord, when I shall have executed judgments in her, and shall be sanctified in her. For I will send into her pestilence, and blood into her streets, and the wounded shall be judged in the midst of her by the sword upon her on every side, and they shall know that I am the Lord. And there shall be no more a pricking briar unto the house of Israel.
nor any grieving thorn of all that are round about them that despised them, and they shall know that I am the Lord God. Thus saith the Lord God, when I shall have gathered the house of Israel from the people among whom they are scattered, and shall be sanctified in them in the sight of the heathen, then shall they dwell in their land that I have given to my servant Jacob, and they shall dwell safely therein, and shall build houses and plant vineyards. Yea, they shall dwell with confidence when I have executed judgments upon all those that despise them round about them, and they shall know that I am the Lord their God. इसमें से हम देखेंगे लूसीफर के बारे में वर्णन दिया है। ओके, हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 27 अध्याय 28 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। सोर के लिए शोक गीत 27 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूं कहे, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ, तेरी सीमा समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया। देखो यहाँ पे एक ध्यान दीजिए। ओके, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा है मैं सर्वांग सुंदर हूँ। ठीक है, ये एक बात। ठीक है, और दूसरी बात देखिए उसका जगह कौन सा दिखाया है। तेरी सीमा समुद्र के बीच है। ठीक है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग बनाया। तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनोवर की लकड़ी की बनी है। तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं। तेरे डांड बाशान के बांज वृक्ष के बने हैं, बांज वृक्षों के बने। तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के द्वीपों से लाए हुए सीधे सनोवर की हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना। तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दे। तेरी चांदनी एलीशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बैंगनी रंग के कपड़ों की बनी। तेरे खेने वाले सीदोन और अरवद के रहने वाले थे। हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांझी थे। तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरनियों और बुद्धिमान लोग थे। तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र के सब जहाज तुझ में आ गए थे। तेरी सेना में फारसी, लूदी और पूती लोग भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझ में ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। तेरी शहर पनाह पर तेरी सेना के साथ अरवद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे। ये ध्यान रखिए, तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर के शहर पनाह पर टांगी थी। ठीक है, तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपने देखो, तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी, यानी वो अकेले में सुंदर नहीं था, उसको सुंदरता में पूरा होने के लिए इनकी जरूरत पड़ी थी, जो उसके शहर पनाह के लिए खड़े थे। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। ध्यान दीजिए, ये सारे वचन आपको लूसीफर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी मिलने वाली है। ओके, अपने सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा, सीसा देकर तेरे माल मोल लिया।
यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। तो गर्मा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारों के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तेरे व्यापारी थे, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे। आपको पता है लूसीफर ने, शैतान ने यीशु मसीह को क्या कहा था परीक्षा लेते समय? मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए आया था शैतान। क्या किया उसने बोला तू मुझे नमन कर तो मैं तुझे यह सब कुछ दे दूंगा, ये सारा ऐश्वर्य जो तू देख रहा है ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे दिया है और मेरे अधिकार में है। मैं किसी को दूं तो मेरे मर्जी से मैं दूंगा, तो तू मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ, ये ऐश्वर्य तुझे दूंगा। ये सब लिखा हुआ क्या है? ऐश्वर्य है। ओके, ये परमेश्वर के द्वारा उसको बनाया गया था और परमेश्वर ने उसके पास ये सब कुछ रिलीज किया हुआ था। ओके, अब देखिए क्या है 13 वचन से आगे। यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। तो गर्मा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारों के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तेरे व्यापारी थे, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे। द्वीप, ओके, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे। वे तेरे पास हाथी दांत के सींगे और अबनोस की लकड़ी व्यापार में लाते थे। तेरी बहुत कारीगरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत बैंगनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लालड़ी देकर वे तेरा माल लेते थे। देखो क्या देकर, क्या क्या एक्सचेंज किया जा रहा है यहाँ पर। यहूदा और इस्राएल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नत का गेहूं, पन्नग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझ में बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ। तेरे पास हेलबोन का दाख मधु और उजला ऊन पहुंचाया गया। वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूत दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापारी हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेढ़े और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। शबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मनी और सोना देकर तेरा माल लिया। हारान, कन्ने, एदेन, शबा के व्यापारी और अश्शूर और कलमद ये सब तेरे व्यापारी ठहरे। इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पट्टियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तर्शीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उनके द्वारा तो समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवैये ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरी धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, माझी, जुड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही है और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिराई जाएगी। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे। तेरे सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने बांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलख बिलख कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे, सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा
धनी होते थे। जिस समय तू अतः जल में लहरों से टूटी, उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नष्ट हो गए। समुद्र तटीय देशों के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह पर उदासी छा गई। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं। तो भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी। हालेलुया। अब देखिए आगे, सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी 28 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में फुलकर यह कहा है। ये देखा, ये सारा वर्णन जो 27 चैप्टर का पढ़ा ना हमने, ये सब कुछ लूसीफर के बारे में है। तो लूसीफर अकेला ताकतवर नहीं है। परमेश्वर ने उसके संगति में कुछ कुछ ऐसी बातें रख दी है, दे दी है, उसके अधीन कर दी है, और उसके कारण वो अपना ऐश्वर्य लेके बैठा हुआ है। ओके और परमेश्वर उससे वो ऐश्वर्य छीन नहीं लिया है। परमेश्वर उस ऐश्वर्य के बारे में क्या कहते हैं ना, उसको एक्सपायरी डेट लगा चुका है। ओके क्योंकि उसने क्या किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध चाल चली, लेकिन अभी इतना सब कुछ लेके बैठा है, वो परमेश्वर की ओर से सब कुछ उसकी तरफ लेके बैठा है। और उसका जगह क्या बताया, समंदर है ना, उसका जगह क्या बताया, समंदर, समंदर के बीच में वो रहता है। ओके उसकी नगरी है वो, हाँ उसका ठिकाना है वो। ओके और यहाँ पे उसका शुरुआत हो जाता है। देखो 2 वचन से आगे, अब परमेश्वर ने उसको जितना दिया है वो लोग जो पृथ्वी के उसके अंदर से लेते हैं, उसके अंदर से एक्सचेंज करते हैं। ओके वो अपनी तरफ से कुछ चढ़ाते हैं और फिर उस वहाँ से उनको जो चाहिए वो लेते हैं। सारा देखेंगे यहाँ पे ना, तो सारा लग्जरियस मैटर सब यहाँ पर लिखा हुआ है 27 वचन में, सारा लग्जरियस। ओके ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ऐश्वर्यता दिखाने वाली सब बातें वहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पे 28 वचन में देखो फाइटिंग बताया है कि परमेश्वर ने क्या नाराजी बताई है उसके विषय में। देखो क्या बोला है परमेश्वर ने, तूने मन में फुलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तो ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। हालेलुया। तो ये शैतान का जगह का ठिकाना का यहाँ पे एड्रेस है। ओके और परमेश्वर कहता है, अगर तू परमेश्वर सा दिखता है फिर भी तू परमेश्वर नहीं है, तू मनुष्य ही है। तू दनियल से अधिक बुद्धिमान तो है। ओके परमेश्वर के वचन में दनियल के बारे में क्या लिखा है कि उसके अंदर उत्कृष्ट आत्मा रहती थी और इसके लिए परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा उसके अंदर रह रहा था। तो यहाँ पे लूसीफर जो है ना, उसके बारे में यहाँ परमेश्वर कह रहा है, तू दनियल से भी अधिक बुद्धिमानी तो है। ओके इसके लिए शैतानी जगत के लोग ज़्यादा चतुराई के लोग हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धिमानी ऐसी है, टेढ़ी बुद्धिमानी। ओके कौन सी टेढ़ी बुद्धिमानी है, उनको चलाने वाला जो शैतान है उसने टेढ़ापन शुरू किया। उसने क्या किया, तूने मन में फुलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ। हाँ इसके लिए लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर सब जगह में उसको ईश्वर मानते हैं। ओके और उसका ठिकाना किधर है, समुद्र के बीच है। और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर के आसन पर वो बैठा है। ओके इसके लिए उसको मानते हैं लोग। ओके क्योंकि 27 अध्याय देखा ना, क्या क्या है उसके पास, क्या क्या उसके अधीन कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, उसके पास है कुछ देने के लिए मनुष्यों को, है ना, ऐश्वर्य है उसके पास। और वही बात उसने यीशु को भी बोला था, अगर तू मुझे नमन करेगा, क्योंकि मैं समुद्र के ऊपर परमेश्वर के स्थान पर बैठा है। ओके तो वो अपने आप को परमेश्वर का स्थान बता रहा है। ओके हम परमेश्वर को कहाँ बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा वो समंदर में रहने वाला परमेश्वर नहीं, हम बोलते हैं स्वर्ग का परमेश्वर, है ना। तो शैतान ने कौन सा जगह लिया, समंदर का। ओके तो वो जगह में वो बैठकर वो बोल रहा है, मैं परमेश्वर के आसन पर बैठा हुआ हूँ। ओके और यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यद्यपि तू अपने आप को, परमेश्वर उसको बोल रहा है, यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है,
वो सच में परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है लोगों को, और लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो कोई उसको प्रणाम कर रहा है, जो कोई उसको मान रहा है, तो उसके अधीन जितने चीजें आपने 27 अध्याय में पढ़ा, परमेश्वर ने उसके अधीन दे रखी थी, लेकिन उसने पलटी चाले चलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसके हाथों से वो सब कुछ छीन नहीं लिया। इसके लिए दुष्टता के जगत में शैतानी कारोबार से चलाया जाने वाला सब कुछ देखेंगे तो बहुत सारे रौनक शौनक में से चलता है, ओके, बहुत सारे रईसदारी में से चलते हैं, बहुत सारे धन संपत्ति के अंदर से एकदम टकाटक होकर लोग चलते हैं उसके अंदर से, क्योंकि शैतान उनको ये सब कुछ देता है, क्योंकि उसके कंट्रोल में दिया गया था। ये सब चीज़ परमेश्वर ने उसके हाथों से निकाल नहीं लिया है, इसके लिए उसके पीछे लोग जाते हैं, ओके, क्योंकि वो दे सकता है कुछ तो जो मनुष्यों को चाहिए, ओके, और उसके पास बुद्धि भी है। उसको कहा गया है कि तेरे पास जो बुद्धि है वो मेरे दानियेल के पास भी नहीं है, ओके, मतलब इतनी अधिक है, जितना मैंने दानियेल को दे रखा है उससे ज़्यादा दानियेल के पास तो मेरी ईमान की बुद्धि है, मेरे पवित्रता की बुद्धि है, मेरे अच्छे गुणों की बुद्धि है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुराई की बुद्धि और ज़्यादा चालाकी और चतुराई कर सकता है, ऐसी बुद्धि तुझे तेरे पास है, शैतान के पास है, ऐसा वो कह रहा है, ओके। कोई भेद तुझसे छिपाना होगा। इसके लिए उसने हवा को आके क्या बताया, हवा को आके उसने बोला कि कोई परवाह नहीं है, तू क्या कर, फल खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो सच में थोड़ी मरने वाली है, बस तुझे ऐसे बोला गया है, लेकिन सच में तू नहीं मरेगी, ओके, तो परमेश्वर के जैसी ही हो जाएगी, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू वैसे हो। तो सच था ये, ओके, उसके पास भेद था, ये जो परमेश्वर का भेद था। परमेश्वर ने जब आदम और हवा ने फल खाया तो क्या किया, उसने बता दिया ना कि आदम और हवा क्या हो गए, मनुष्य क्या हो गया है, अभी परमेश्वर में से एक के समान हो गया है। उनका बगीचे में रुकना अच्छा नहीं, कि वो जीवन के फल को भी पकड़ लेंगे, तो उससे अच्छा है कि उनको यहाँ से निकाल दो। तो परमेश्वर सच में नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर के समान बने, ओके, तो नहीं चाहता था। और सेकेंडली क्या है, आदम और हवा को जो शैतान ने बोला था वही बात परमेश्वर ने बोला कि वो परमेश्वर के समान बनेंगे, ओके। तो इस प्रकार से उसके पास भेद है जो छिपाया गया नहीं है। इसके लिए वो लोगों को अक्ल सिखाता है, इसके लिए वो लोगों को चाल चलाकियाँ सिखाता है, जैसा हवा को सिखाया। हवा को क्या सिखाया, परमेश्वर के वचन को, डर मत रे तू, डर मत, कुछ नहीं करेगा वो परमेश्वर कुछ नहीं है, डर मत तू, डर मत, ओके। ये बात उसने हवा को बोली, और हवा ने क्या किया, मान लिया उसको, क्योंकि उसकी बातों में कुछ था दम, ओके। क्या दम था, फालतू का दम था, ओके। परमेश्वर कह रहा है, मतलब परमेश्वर वो अपने आप को परमेश्वर के आसन पर बैठा है ऐसा बोल रहा है। इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला संभाल लेगा। कोई भी देखो, कोई भी मनुष्य देखो, वो अपने भक्ति का नाम नहीं लेगा, लेकिन वो यही बोलेगा, ऊपर वाला संभाल लेगा, सबका मालिक एक ही है, ऐसे ही बोलेंगे वो लोग, ओके। तो ये नहीं है, सबका मालिक एक है ऐसे बोलना, या ऊपर वाला संभाल लेगा ये सब बोलना, ये नहीं। आपको ढंग से पता चलना चाहिए, सिर्फ एकमात्र यहोवा परमेश्वर है, वो ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगहों में उसी का सिर्फ चलता है, उसी ने सब कुछ सृष्टि किया है, और लूसीफर भी उसने सृष्टि की हुई सृष्टि है, ओके। तो ये कोई ऐसे अचानक से परमेश्वर के ऊपर चढ़ने के लिए, बैठने के लिए उसको नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपने घमंड में आकर वो स्थान ले लिया जो परमेश्वर ने उसके अधीन किया था। उसका स्थान समंदर में हो चुका था, तो उसके अधीन बहुत कुछ दे रखा था, लेकिन वो सब कुछ लेके अपना खुद का परमेश्वरीयता उसने अपना स्थापित करना शुरू किया था। परमेश्वर को दिया अकेला, अलग कर दिया, और खुद परमेश्वर कहलाने लगा अपने आप को, ओके। तो परमेश्वर ने बोला, तू बोल तो रहा है अपने आप को ऐसा, लेकिन तू है नहीं, ओके। और फिर देखो परमेश्वर का कैसा शुरू हो गया है, उसके ऊपर का सारा रोष कैसे वो बोल रहा है। देखिए अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है, ठीक है तू इतना बुद्धिमानी, क्यों दानियेल से भी ज़्यादा बुद्धिमानी बोला परमेश्वर ने, जबकि परमेश्वर कहता है दानियेल के अंदर उत्कृष्ट आत्मा है, फिर ये बुद्धिमान उससे भी ज़्यादा ये बुद्धिमान है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो एंजल है, वो स्वर्गदूत था लूसीफर, ओके।
वो एक नगरी है, ओके, समंदर के अंदर के एक नगरी है वो, ओके, और उसके अंदर का ऐश्वर्य सब कुछ जो है उसको संभालने का उसके पास सारा सब कुछ रहस्य भेद है, ओके, जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने उसको देखने दिया है, समझने दिया है, उसे छिपा के नहीं रखा है। अब उसी को लेके उसने हवा पर मार दिया, ओके, तो सच में नहीं मरेगी, सच में नहीं मरी वो, ओके, चलती गई ना आगे, वो तो अपना जीवन जीती गई। तो इसका मतलब क्या है, उसने जो बोला वो भेद उसके अंदर से छिपा हुआ नहीं था कि मनुष्य को कौन सी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, कैसे उनको फुसलाना है, किधर से क्या होने वाला है, और परमेश्वर जो बोल रहा है उसमें कितना मनुष्य को पता है और कितना मनुष्य को पता नहीं है, ओके, वो सब कुछ फर्क करके मनुष्य को ट्रैप कर लेता है अपने बुद्धिमानी में, ओके, तो इसके लिए वो दानियल से भी ज्यादा बुद्धिमानी है ऐसा कह रहा है, ठीक है। और चौथा वचन देखिए, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया ओके, और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा। तो अब उसने जो यीशु मसीह को बोला, ये जो ऐश्वर्य दिख रहा है ना, ये सब मैं तुझे दूंगा, सिर्फ तू मुझे नमन कर। तो उसने क्या किया था, वो बुद्धि से और समझ से धन प्राप्त कर लिया था, और मतलब क्या किया उसने, प्राप्त किया मतलब पकड़ लिया, अपना हक उसके ऊपर डाल दिया, ओके, अपना अधिकार उसके ऊपर डाल दिया। अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा, और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है ओके, तो उसके वही हुआ ना जो चतुराई उस दास ने बताई है ना, जो पैसों का व्यवहार कर रहा था उस मालिक का, तो फिर उसने हेरा फेरी की, ऐसे पकड़ा गया तो उसको निकालने का समय आ गया था। उसने दूसरी चाल चली और उसका मालिक खुश हो गया, उसको नौकरी पर दोबारा रख लिया। तो ये बुद्धिमानी का कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा तुम सर्प के समान चतुर रहो, और ये बुद्धिमानी के बारे में यीशु मसीह कहता है अंधकार के संतान बहुत ज्यादा चतुर है, ज्योति के संतान से ज्यादा चतुर है। हालेलुया, क्योंकि शैतान बुद्धि यूज करता है, बुद्धिमानी यूज करता है वो, ओके, उसके पास कुछ छिपे हुए नहीं है बातें, उसको पता है, उसको परमेश्वर के रहस्य और भेद में से जो बातें उसके तक छोड़ दी है परमेश्वर ने, जहाँ तक छोड़ दी है वो बातों के अंदर दानियल को भी इतना नहीं मालूम है जितना उसको मालूम था। जितना दानियल के ऊपर भी परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, उतना ज्यादा लूसीफर के ऊपर प्रकट करके रखा है परमेश्वर ने, ओके। तो अब वो उसके बुद्धि का कारागिरी दिखाया उसने, और ज्यादा अपने आप का ऐश्वर्य अपने कंट्रोल में और ज्यादा खींच लिया उसने, ओके। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा, और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, ओके। अब देखिए वो अपने अंदर से जो राज्य चला रहा है वो झूठ का राज्य है, ओके, वो सच में परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मनुष्यों के सामने परमेश्वर कह के बता रहा है। तो अब ये परमेश्वर नहीं है, बोलेगा कौन, क्योंकि सब कुछ तो वो परमेश्वर की चाल चल के लोगों का मन जीत लिया है। अब लोगों को बोलो जितना बोलना है, वो थोड़ी आपको मानने वाले, उल्टा वो बोलेंगे आप उनके परमेश्वर कहे हुए बातों को आप क्या कर रहे, अपमानित कर रहे, उसके लिए वो आपके साथ फाइटिंग करेंगे, ओके। उनको उसका अपमान किया हुआ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उतनी जगह उसने मनुष्य के अंदर ले लिया है, ओके। उसने मनुष्यों के अंदर उतनी जगह लेकर अपना स्थान बना दिया है, और उनको किधर बुलाता है मुलाकात करने के लिए, वो उस जगह में जो समंदर है, ओके, वहां पर वो उनको मुलाकात करता है। वहां पर उसकी नगरी है, उसके अंदर उसके सेवागिरी करने वाले लोग वहां पर रहते हैं, ओके, उसके अंदर जाके रहते हैं, नगरी है वो, ओके। एक शहर पनाह लगे हुए हैं उसको, ओके। उसके शहर पनाह को संभालने के लिए दूसरे और चीजें लगी हुई है, वहां पर ढाल लगी हुई है, वो सब इकट्ठा मिला के शैतान का ऐश्वर्य बनता है,
उसकी ब्यूटी बनती है। ओके, तो इसका मतलब जो लोगों का मन उसने जीता, वो क्या सच्चाई का मन जीता है क्या? नहीं, झूठ 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 सब कुछ दिखा दिखा कर उसने जीत लिया। क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है, तू परमेश्वर के आसन पर बैठा ऐसा तू कह तो रहा है, लोगों को उल्लू तो तू बना रहा है, मूर्ख तो बना रहा है, तेरे पास बहुत ताकत है, ऐश्वर्य है, तू लोगों को रिझा तो रहा है और खुद उनकी आराधना को ले रहा है। तू अपने आप को परमेश्वर कह के आराधना ले रहा है, उनकी भक्ति तो अपने पास ले रहा है, तो उनको लड़वाता है, हाँ, फाइटिंग में डाल देता है अगर हम लोग उसके विषय में कुछ गलत कहेंगे तो, हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा तूने उनका मन जीत लिया है। अगर अब हम सच्चाई को बताएंगे तो भी वो मानेंगे नहीं हमारी, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ के रास्ते से उनको ये सारा ऐश्वर्य दे देकर उनका मन उसने खींच लिया है। ओके, और उसकी पोजीशन से उसके पास बुद्धि है, हालेलुया, वो बुद्धिमान कहा गया है, उसको परमेश्वर ने कोई भेद छुपा के नहीं रखा है। ओके, तो इतना ज्यादा उसके सामने है, उसके पास है, वो मनुष्य को देके अपने आप को परमेश्वर के समान दिखा भी देता है, क्योंकि भेद है उसके पास। ओके, रहस्य है उसके पास जो मनुष्य नहीं जानता है, जो मनुष्य के फायदे के लिए, लेकिन मनुष्य को वो नहीं मालूम है। ओके, मनुष्य के फायदे के लिए है, मनुष्य को मालूम नहीं है। तो मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया नहीं था मनुष्य को वैसा। ओके, अब मनुष्य को क्यों नहीं दिया था? ये परमेश्वर की इच्छा थी जो उसने दिखा दिया है आदम के वक्त में कि परमेश्वर के समान एक ये बन गया है आदम, अब इसको अदन के बगीचे में रहना अच्छा नहीं है, नहीं तो ये जीवन का फल भी खा लेगा, इससे पहले इसको यहाँ से निकाल दो। यानी परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम उस फल को खाए और परमेश्वर जैसा एक बन जाए। परमेश्वर सच में नहीं चाहता था, ये भेद भी शैतान को मालूम था। हालेलुया। और फिर उसने उस हवा को बोला था तू सच में थोड़ी मरने वाली है, यानी तू ये सारा उसके पास जो ऐश्वर्य था उसको लेने के लिए तू जिंदा रहने वाली है, तेरी पीढ़ियां रहने वाली है, और जो तेरे मरने की बात बोली है उसके बारे में तू चिंता मत कर। ओके, उस चिंता मत कर। ये आज भी लोगों के सामने मृत्यु का डर नहीं है। अगर उनको बोलेंगे नर्क रखा है, मृत्यु रखी है, तुम लोग यीशु मसीह को मान लो, नहीं तो नर्क में फेंके जाओगे, आप मर जाओगे और आपको कहीं पलट कर आने का रास्ता नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे मरे तो मरे, आपको क्या करना है। उनको डर नहीं है। हालेलुया, क्योंकि शैतान ने उनके मन को जीत लिया है। उस जो सच्चा डर उनके अंदर होना चाहिए, मृत्यु का डर उनके अंदर होना चाहिए कि नहीं, हमको मृत्यु के वश में नहीं जीना है, हमको परमेश्वर के तरफ जाना चाहिए, मृत्यु हमारा रास्ता नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए उन्होंने। तो वो मृत्यु को अपना रास्ता बना के वो बोल रहे नहीं नहीं यही सच्चा रास्ता है। ओके, उनको असलियत मालूम ही नहीं, शैतान झूठ बोल रहा है उनको, खुद परमेश्वर बोल रहा है तू जो दिखा रहा है लोगों को तो सच में वैसा है ही नहीं, तो सब जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है। ओके, उनके मन को तूने जीत के लिया है। हालेलुया। तो इसके लिए लोगों को धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ जहाँ मिलेगा वो वहाँ भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उनका मन उसमें बैठ जाता है। ओके, उनका मन उधर से निकलता नहीं है, उनको वही प्यारा स्थान लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसको स्थिर रहने देगा नहीं। ओके, शैतान का स्थिरता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, भले ही उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स है जिससे वो आपको रिझाता है, हाँ, आपको ललचाता है, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स है कि आपको परमेश्वर से डरने ही नहीं देता है। वो हवा को भी उसने डरने नहीं दिया। ओके, लेकिन वो परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने उसके बारे में बोला है वही रहने वाला है। परमेश्वर ने बोला तू मनुष्य है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू अपने आप को सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहा है अपने आप को परमेश्वर बताकर, और एक जगह समुंदर को तूने लेकर बैठा है, सारा ऐश्वर्य लेकर मनुष्य के मन को जीत के बैठा है, लेकिन तू स्थिर नहीं रहेगा, स्थापित नहीं रहेगा। हालेलुया। और ये देखिए अब उसके बारे में क्या क्या दिया है। ओके, वो झूठा है, हाँ, वो झूठा है, उसके पास बुद्धिमानी है और वो चालाक है और वो बहुत भेद को भी जानता है और ऐश्वर्य भी है। इतना सब कुछ उसके पास होने के बाद मनुष्य परमेश्वर कौन है और शैतान कौन है कैसे समझेगा? क्योंकि वो अपने गुणों को कैसा दिखाता है, परमेश्वर का सा गुण दिखाता है वो अपने अंदर से।
हाँ, लेकिन असली में है क्या वो? नहीं। ओके, देखिए क्या दिखाया यहाँ पे, तो जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ, शैतान का मुकाबला करने का सेना परमेश्वर के पास मौजूद है। हमेशा मैंने आपको बोला है, शैतान एक अकेला नहीं है। उसको सामना करने के लिए, जैसा मैंने बोला, गॉड क्या है? गॉड जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके, ये तरफ का बात परमेश्वर का कि लूसीफर के राज्य को तोड़ने वाला यहाँ पर मौजूद है। ये किसी ने भी लूसीफर के जगत के अंदर एक दूसरे को जानकारी दी नहीं है, ये बाइबल के अंदर लिखा है। ओके, इसके लिए अगर आप कभी भी शैतानी चाल चलाकियों को देखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, शैतान खुद डरता है, क्योंकि उसके विरोध इस विश्व के अंदर परमेश्वर ने ऐसा बना के रखा है कि उससे शैतानी जगत डरता है। हालेलुया। तो ऐसे शक्तियां मौजूद है, परमेश्वर ने रखी है, जो शैतानी जगत के हाथों नहीं लगती है, वो उल्टा उनको बर्बाद करके रख देगी। वो शक्तियां नेचुरल, नैसर्गिक तरह से बनाई गई है। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा मैं परमेश्वर हूँ? ओके, देखिए अब शैतान का मुकाबला अगर आप देखो, अगर मैं कहूँ यहोवा परमेश्वर है, तो यहोवा को टक्कर लगा के यहोवा को हराने वाला अगर कोई है तो फिर मान सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर नहीं है, है ना। लेकिन यहोवा परमेश्वर है और उसको टक्कर लगाने के लिए विश्व के अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये सच्चाई है ना। अब ये लूसीफर का जगत जो है, शैतानी जगत जो है, इसके अंदर इसको टक्कर लगाने के लिए 7 वचन में व्यवस्था कर दिया परमेश्वर ने। अब ये लूसीफर अगर डींगे मारेगा मैं ही परमेश्वर हूँ, तो काहे का परमेश्वर? उसको डींगे तोड़कर उसको कब्र में पहुंचा देने वाला और उसके सारे समुद्र के बीच मारे हुओं के रीति पर उसे मर जाने के लिए छोड़ देने वाला, ऐसा एक अवस्था 7 वचन बता रहा है परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। तो जीतने वाला परमेश्वर लूसीफर को टक्कर देके उसको हरा रहा है और लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं, लोग उसके समझ रहे हैं कि उसके पास कुछ है, वो कुछ देता है, उसका पीछा करना चाहिए, उसके पास कुछ है। काहे का है? काहे का है? वो झूठा है माय डियर फ्रेंड्स, वो झूठा है। क्या दे रहा है वो आपको? चलाकियां दे रहा है बस, और क्या दे रहा है? धन संपत्ति दे रहा है, और क्या दे रहा है वो आपको? ओके, वो ये नहीं दिखा रहा है आपको कि उसको टक्कर लगाने वाला भी मौजूद है। यीशु मसीह को तो अलग रखो, कोई बात नहीं है, ये तो ऑलरेडी 7 वचन परमेश्वर ने पहले ही तैयार करके रख दिया है उसको टक्कर लगाने वाला। ओके, और देखिए क्या लिखा है, और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा मैं परमेश्वर हूँ? हालेलुया। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। हालेलुया। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो अब फैसला हमने करना है। ओके, इतना ओपनली शैतान के बारे में यहाँ पर लिख दिया है कि उसके बुद्धि को तुम बलि मत जाओ। ओके, उसके सोचों को तुम अपने सिर पर उठा के मत लो, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया, इसके लिए उसको मालूम है। और परमेश्वर ने उसके हाथों में कुछ दे के रखे थे, वही उसके पास है, और उसने अपनी चालाकियाँ यूज़ की और फिर वो उपयोग करके उसने कुछ और बटोर लिया, छीन लिया, कुछ स्वर्गदूतों को गिरा के अपने साइड में ले लिया, और फिर अभी उसका सारा जो ऐश्वर्य है वो सब के साथ मिल बांट के है। वो अकेला पावरफुल नहीं है,
उसके सारे मिल बांट के उसने इकट्ठे करके अपने साथ रखा है, और तभी वो इकट्ठा कुछ लग रहा है कि वो कुछ है करके, लेकिन असलियत में वो कुछ भी नहीं है। उसको टक्कर देकर गिराने वाला 7 वचन उसमें लिखा हुआ है, कौन उसको टक्कर देके गिरा रहा है। ओके, अब उसके सामने अगर ये जो भक्ति कर रहे उसके सामने अगर ये बताया जाए 7 वचन, तो वो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है वो भाग अभी तक। उनको ये सच्चाई मालूम ही नहीं है कि उसको टक्कर देने वाला भी कोई मौजूद है। 7 वचन में लिख के रखा है वो। ओके, सोर के राजा का पतन, 11 वचन से आगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। ठीक है, समझ में आया? तो परमेश्वर खुद तारीफ करके उसकी बात कर रहा है। हाँ, तो उत्तम से भी उत्तम है। और पिछले वचनों में क्या लिखा? तो बुद्धिमान भी है, और तेरे पास रहस्य और भेद भी तुझसे छिपा हुआ नहीं है, और धन संपत्ति बस माला माल है, बस बिजनेस ही बिजनेस चलते हैं तेरे राज्य में, और तू इतनी चालाकी यूज करता है कि तू बहुत कुछ अपने लिए बटोर कर भी रखा हुआ है। ओके, उसके स्टोर हाउस करके रखे है उसने। परमेश्वर खुद बोल रहा है, तूने कर तो लिया है इतना। ओके, आगे देखो, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर भी है। हाँ, तू और सर्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। ले, अब मुझे बताइए, लोग क्या बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे जाके बहुत सारा सोना चढ़ाया, बहुत सारा हीरा चढ़ाया, वहाँ पर जाके बहुत सारा अर्पण में क्या देते हैं पता है? मानिक, पद्मराग, हीरा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि। लोग ऐसे लुटा कर वहाँ पर कहीं ना कहीं जाके उंडेल रहे, अर्पण चढ़ा रहे। अरे माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये क्या है? ये ही तो है उस लूसीफर का पहरावा। हालेलुया, ये लूसीफर का पहरावा है। हालेलुया। और ये पहरावा के साथ साथ तुम लोग उसके ऊपर, अगर हम लोग उस या कोई भी उसकी भक्ति करके उसके ऊपर ये सब चढ़ाया, तो क्या वो लोगों को परमेश्वर मिल गया है क्या? नहीं, वो परमेश्वर है ही नहीं। ओके, थोड़ा बहुत उसके पास परमेश्वर ने कुछ दे दिया, ज्ञान, बुद्धि, समझ, उसके कारण वो परमेश्वर जैसा बता रहा है अपने आप को, तो क्या वो परमेश्वर बन गया क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपको ये सारा उंडेल रहा है कोई, देखो कोई भी अगर कहीं पर भी कुछ बनाया तो उसको यही सारे आभूषण से सजाए जाते हैं, क्योंकि लूसीफर वैसा ही तो था। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आप कोई ऐसा नहीं देखोगे किसी ने कुछ भक्ति करने के लिए बनाया और उसको ये सारे ऐश्वर्य के चीज़ों से, ये मणिकों से, ये बहुत महंगी महंगी बातों से उसको सजाया नहीं होगा। ऐसा देखेंगे ही नहीं आप। क्यों पता है? क्योंकि ये वही तो लूसीफर है जिसके ऊपर ये सब पड़ा हुआ है। ओके, तो इसके लिए उसके पीछे जाने वाले ये सब उसको चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो इसमें क्या वो परमेश्वर है? नहीं। वो 4 चालाकियां सिखा दिया, तो क्या वो परमेश्वर है? नहीं। हालेलुया। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हेले कोई परमेश्वर को बना सकता है क्या? अगर वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर को बनाने वाला दूसरा कोई है, तो वो कौन है फिर? हालेलुया, हालेलुया। कितना बुद्धू बना के रखा है लूसीफर ने इस जगत को, कितना उल्लू बना के रखा है, और कितना मन लोगों का जीत के रखा है कि वो हमारी इस सच्चाई की बात को मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया।
देखिए क्या लिखा है, तो छाने वाले अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिर जा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो परमेश्वर खुद कह रहा है, लूसीफर एक समय ऐसा था जिसके बारे में वो निर्दोष था। ओके, उसके चाल चलन में निर्दोषता थी। ओके, लेकिन जैसे ही उसके चाल चलन में परमेश्वर जैसा बनने का कुटिल मन आ गया, वहां पे प्रॉब्लम आ गया। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भर गया। आज भी देखो यही प्रॉब्लम है, दुनिया के अंदर यही प्रॉब्लम है। इस कंट्री ने उस कंट्री को लूट लिया, उस कंट्री ने इस कंट्री को धोखा दिया, इस बिजनेसमैन ने उस बिजनेसमैन को धोखा दे दिया, इसके पैसे उसने चोरी किए, उसकी प्रॉपर्टी इसने छीन ली, इसकी प्रॉपर्टी उसके तरफ चली गई, उसने और कुछ। अरे मैं कौन से भाषा में सिखाऊं आप लोगों को कि ये सारा बुद्धि लूसीफर का है, हालेलुया, शैतान का है। ओके, और परमेश्वर ने उसको बनाया, उस बुद्धि का उसने दुरुपयोग किया, उसने अपने लिए बटोरने में लगा लिया। आज लोग क्या दिखाई देते हैं आपको? बटोरने वाले नहीं दिखाई देते कि आपको? ओके, अगर 10,000 रुपया है तो वो 20,000 के पीछे चले जाते हैं। ओके, अगर सीधे हाथ नहीं मिले तो टेढ़े उंगली से घी कैसे निकलेगा, ऐसा बोलते हैं वो। ओके, सीधे से नहीं दिया तो टेढ़े करेंगे, टेढ़े नहीं किया तो बोतल तोड़ के निकालेंगे, ले लो। ओके, तो इस प्रकार के डायलॉग बाजी, इतना जिद्दी, फिरौन की तरह कड़ी गर्दन, घमंड रखने वाला, अपनी ताकतों में बुद्धिमानी को बहुत ज्यादा मायने देने वाला, इतना ज्यादा कि वो इस्राएल को छोड़ने नहीं चाह रहा है। यहोवा कह रहा है उनको छोड़ दे, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। इतना उनके पावर्स के ऊपर फिरौन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था। किधर गया वो? किधर गया वो? परमेश्वर ने उसको पानी के नीचे सब कुछ के साथ खत्म कर दिया। अरे परमेश्वर को आप लोग नहीं डरेंगे तो जिसको डर रहे वो झूठा है, वो झूठा है, उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सच्चा परमेश्वर है वो आपका न्याय करेगा। ओके, वो न्याय करेगा, उसका ध्यान रखो आप। वो उसने नरक बनाया है, उसने स्वर्ग बनाया है, और ये लूसीफर है जिसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं और परमेश्वर को आप मानना नहीं चाहते हैं। जब परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर हम आपको बताते हैं, आप नहीं मानना चाहते। लूसीफर जो झूठा है, जो परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट्स रखा है, जिसके पास खुद की ताकत नहीं है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस छोड़ दिए थे, दिखा दिए थे, वही सब सीक्रेट्स उसके पास है। वो आप लोगों को सीक्रेट्स दिखा रहा है और आप उसके ऊपर फिदा हो गए। ओके, वो कहाँ पहुंचेगा? देखिए अभी वहीं पर आप लोग भी पहुंचने वाले। काहे का आपका वो परमेश्वर बन सकता है फिर? ओके, देखिए क्या लिखा है, तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। 16 वचन से आगे, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, हाँ, आज थोड़ा बिजनेस बढ़ जाने दो, आज थोड़ा कंपनी में तरक्की आने दो, आज थोड़ा प्रमोशंस का लालच लगने दो। देखो कैसे फिर आप अफरातफर करने लगते, उपद्रवी बन जाते हैं लोग। इसको मार डालेंगे, उसका मर्डर कर देंगे, उसको लूटेंगे, उसको क्या क्या नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो लेन देन का तरीका लूसीफर का है। हालेलुया, उस तरह से लूसीफर का चाल चलन है। हाँ, चोरी, नाश, घात, ये सब उसका चाल चलन है, क्योंकि वो लेन देन के व्यवहार के अंदर का बिजनेस माइंडेड है। हाँ, वो आपको भी बख्शेगा नहीं अगर उसके लेन देन में आपने कुछ ट्रबल कर दिया तो। ओके, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। हालेलुया, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर फटक दिया, हालेलुया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे, तेरी अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से। हाँ, अगर आपने सुना कि किसी की प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली,
ठीक है, लूसीफर का उसने काम पूरा करके लिया। ओके, शैतानी जगत का, उसको मसीही मत बोलो, ठीक है। उसके अंदर के काम जो है वो किसके काम दिखाता है? जैसा यीशु ने कहा, मैं जानता हूं तुम अब्राहम के संतान हो, लेकिन तुम्हारे काम तो तुम शैतान के दिखा रहे हो। हालेलुया। तो आपके काम से आप परखे जाओगे कि आप मसीह हो या नहीं। तुम्हारे फलों से पहचाना जाएगा तुम मसीह हो या नहीं। ये लेन देन के बीच में क्या होता है मालूम है? कड़वाहट आ जाती है, दुश्मनी आ जाती है, ओके, हेरा फेरी, धोखेबाजी आ जाती है, मन के अंदर एक मुंह पे अलग, ओके, अलग अलग रंग बदलने वाला ऐसे रास्ते पकड़ के अपना फायदा कर लेना, यही सिर्फ उनको मालूम रहता है और कुछ मालूम नहीं रहता है। ओके, अगर बनता नहीं है तो बिगाड़ के रखो, अगर बिगाड़ नहीं सकते तो बदला लेके रखो, अगर बदला नहीं ले सकते तो उड़ा दो उसको, दुनिया से ही उड़ा दो। ये सारा क्या है? आपका लेन देन खराब हो गया, तब आप ऐसे चाले चलते हैं। हालेलुया। तो ये कौन चलाता है? लूसीफर चलाता है, ये कोई परमेश्वर नहीं चलाता है ऐसा। ओके, तो हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है। सीधाई से मानना चाहते मानिए, नहीं 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 मानना चाहते, वी डोंट केयर। ओके, लेकिन आपको दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, दोबारा कंपैरिजन में मत कहिए ऐसा कि सबका मालिक एक या सबका परमेश्वर एक, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक जन ऐसा बैठा है जो परमेश्वर तो है नहीं, लेकिन वो सबके ऊपर बैठ के सबको बता रहा है मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन वो है ही नहीं। ओके, तो इसके लिए हम नहीं मानते हैं उसको, मैं नहीं मानती हूँ उसको। ओके, मैं नहीं मानती हूँ सबका मालिक एक, मैं नहीं मानती हूँ सबका परमेश्वर एक, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। ओके, जिसके बारे में सिर्फ हमको पवित्र बाइबल बताता है। आमीन। जिसका नाम इस्राएलियों के ओर से हमको मालूम पड़ा वो यहोवा है। बस उसके द्वारा जो सृष्टि के अंदर चल रहा है हम उसको मानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ओके, जिसको जो मानना है मान सकते हैं, आपका फ्रीडम है वो, लेकिन सच्चा परमेश्वर हमको मिल चुका है। अब हमको और ज़्यादा किसी का कुछ सुनना नहीं है। कभी मत आप कॉम्प्रोमाइज़ करो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप मसीह हो कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो उस बात के ऊपर तुम भी हम भी, नहीं तुम कहीं और हम कहीं और है भाई। ओके, नहीं हो सकता है एक मन वहाँ पर। ओके, तुम अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारी जगह हमको मिल चुकी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए और क्या लिखा है, तेरे अधर्म के कामों के बहुतायतों के से और तेरे लेन देन की कुटिलता से, हाँ, धोखा देते हैं, आकर चुपचाप जादू टोना डालकर निकल जाएंगे। अरे किसको सिखा रहे? तुम्हारे बाप की चाल तुम चल रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा पिता वही तुम्हारी चाल चलन। हमारा पिता यहोवा परमेश्वर है, तो हमारा चाल चलन में ये सब नहीं आता है, ये सब नहीं आता है जो आप लोग करते हैं। हालेलुया। तो ये बात ध्यान रखना है हमको। ओके, हम में और तुम में जमीन आसमान तो छोड़ दीजिए, फर्क करने के लिए दूसरा ऐसा नाप तौल करने का भी कोई हथियार नहीं है। इतना गहरा फर्क है। जैसा अब्राहम के गोदी में लाजर पड़ा हुआ था और नर्क की जगह में वो रईस इंसान था, तो अब्राहम ने उसे कहा ऐसी कोई बात तेरे तक पहुंचने के लिए जरिया नहीं है, तू तेरी जगह में, लाजर की जगह में, दोनों इकट्ठे एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। कोई कनेक्शन नहीं है भाई। ओके, कोई कनेक्शन नहीं है बहन। ओके, जो परमेश्वर है एकमात्र, जो परमेश्वर यहोवा है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया है, हमको वो मालूम पड़ चुका है, और हमको बहुत ज़्यादा किसी के डायलॉग या किसी के कहावत और कहने की बातों के नीचे नहीं आना है, हमको नहीं आना है। फुल स्टॉप है उसके ऊपर। नहीं, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। ओके, हम नहीं मानते हैं। आप दुनिया घुमा लो, नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। ओके, इसके लिए सब कुछ के अंदर सब कुछ एक नहीं है। ओके, एक डुप्लीकेट कॉपी भी मौजूद है यहाँ पे। ओके, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, वो अपने आप को डुप्लीकेट बताता है, वो भी मौजूद है। इसके लिए हम नहीं मानते हैं। जो एग्जैक्ट ओरिजिनल है हम उसी परमेश्वर को मानते हैं, जो है सो है।
मानना तो मानना है, आपको नहीं पसंद है तो मत सुनिए, अगर पसंद है तो सुनिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम में और बाकियों में कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। ओके, 19 वचन क्या है? देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तो भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। हालेलुया। उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। जाओ उसके पीछे, जाओ, वी डोंट केयर, कोई है ही नहीं उसके लिए अंत, कहीं ख़त्म ही है वो सब कुछ। और आप उसके पीछे जाके कहाँ पर पहुँचने वाले? ख़त्म की जगह में पहुँचेंगे। ओके, सीदोन के विरुद्ध भविष्यवाणी 20 वचन से आगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। ओके, तो तब तक तुम लोग नहीं मानोगे। परमेश्वर ने रखा है तुम्हारे लिए भी एक अवसर रखा है तुम लोगों को मनवाने का। ओके, पता लगा देने का सच क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, तो हम लोगों को इतना कष्ट लेने का ज़रूरत नहीं है तुम लोगों के सामने हम कौन है तुम कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जिधर जाना है जाओ। ओके, लेकिन जब परमेश्वर दिखाने का समय आ जाएगा ना, तब तुम लोगों को मौका नहीं रहेगा पलट कर आने का। ये अब भी इस जगह में हम लोग जब वचन बता रहे, ये मौका रखा है परमेश्वर ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत जल्दी यीशु आएगा, हमको उठा ले जाएगा, ख़त्म हो गया। उसके बाद का तो अवसर भी ख़त्म हो जाने वाला है। ये समय है, ख़त्म करो अपनी ज़्यादा दिमागदारी, बंद करो अपनी सारी अकल और सिर्फ पवित्र बाइबल में हम जो बता रहे उस परमेश्वर के पीछे चलो, शांति से जीवन के रास्ते को पकड़ लो, बाकी सब बंद करो, अच्छा रहेगा। ओके, क्या है 23 वचन क्या बताता है? मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी, तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, इस्राएल को आशीष मिलेगी। देखिए क्या लिखा है 24 वचन से आगे। इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी, तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उसके चारों ओर के सब लोगों को क्या करूँगा? सुन रहे मेरी बात? दंड दूंगा। ये मैं प्रार्थना किया इसीलिए दंड मिलेगा? नहीं। ओके, ये आपको किसी ने श्राप दिया इसीलिए दंड मिलेगा? नहीं। यहाँ खुल्लम खुल्ला लिखा है, आपका समय परमेश्वर दंड के लिए ठहरा चुका है। हालेलुया, लगे रहो अपने चाल चलन में, लगे रहो। वी डोंट केयर। हालेलुया, जहाँ तक बताना है बोलना है ठीक है, डींगे मारना है उसके आगे भी जाकर, वी डोंट केयर, जाइए आगे जाइए। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? सब लोगों को फिर क्या करने वाला है परमेश्वर? दंड देने वाला है। हालेलुया, जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। ओके, हंसना है हमारे परमेश्वर के बातों के ऊपर, हंसिए। ठट्टों में उड़ाना है, उड़ाइए। ओके, अविश्वास दिखाना है, नो प्रॉब्लम। हाँ, और कुछ परेशानी में डालना है, वी कांट हेल्प, हम कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ परमेश्वर ने ऑलरेडी आपका फ्यूचर बना दिया है, तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इसका बताऊं, ये वचन का सब लोगों को दंड दूंगा ये बारे में बताऊं, और याकूब का घराना कौन है? आज हम लोग हैं।
हालेलुया, हम उसके अंदर निडर है। ओके, हमारे लिए यीशु मसीह निडरता का हमारा राज्य शुरू हो चुका है। हमारा घर यीशु के अंदर शुरू हो चुका है। ओके, हमारा जर्नी यीशु के अंदर लग चुका है। हमारा डेस्टिनी यीशु के अंदर बन चुका है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, हम सेफ साइड में जा रहे हैं। ओके, अब आप लोग देखिए आपको कहाँ जाना है। जहाँ तक हम आप लोगों के लिए है, हम बता रहे हैं यीशु मसीह के विषय में, हम लोग उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के आगमन में। आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ओके, समय अब भी है, गवाना नहीं है माय फ्रेंड्स। हम लोगों को बहुत कम समय है। अगर इस समय को भी आपने सोच में नहीं लिया तो परमेश्वर ही आपके ऊपर अब दया करे, और कुछ नहीं कर सकते हैं हम। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबको सहायता करे इस सच्चाई को समझने के लिए। पवित्र आत्मा, गहरी सच्चाई है खुदा गहरी सच्चाई है। काश आज सुनने वालों को ये प्रकट करके दे तू सच्चा परमेश्वर कौन है। काश वो ले अपने अंदर और रास्ता परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की ओर मोड़ ले। क्या चाहिए मुझे इसके अलावा खुदा? क्या चाहिए, क्या मांगो मैं इसके अलावा तुझे? ऐसी कौन सी हैसियत और ऐसी कौन सी बात कि मैं तमन्ना रखूं खुदा, कि मैं इच्छा रखूं और कुछ? पिता परमेश्वर, ये तो बस तुझ ही पर डिपेंड है पिता, कि तू अपने आप को प्रकट कर उनके ऊपर, ताकि वो समझ जाए और उस अंत से वो छुड़ा लिए जाए जो तूने उनके लिए ठहराया है, दंड देने का अंत। रास्ता बदल कर लेने वाला पवित्र आत्मा, तू ही सिर्फ उनको संभाल सकता है, उनको बदल कर ला सकता है। तुझ में है वो काम करने की कुव्वत। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, प्रकट कर उनके ऊपर, सच्चाई दे उनको, ताकि वो अपने प्राण को परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर लेकर आ सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हमें ईश्वरीय डिवाइन रचना में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। I love you Abba Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit। कोई नहीं तेरे जैसा परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू फादर। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। 2 years बाइबल रीडिंग, जॉन 13 चैप्टर 31 वर्स से 38 वर्स, 1 क्रॉनिकल्स 22 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 31 वचन से 38 वचन तक। पहले इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय। अकेले में बैठकर जैसे आज ये बातें आपको सुनने को मिला कि असली परमेश्वर कौन है और नकली अपने आप को परमेश्वर बताने वाला कौन इस जगत के अंदर, आप किसके पीछे जा रहे। जब ये पहचान आज अगर आप लोग सुन रहे हैं और पता चला है, ऐसा कितना सारा बात है जो आप अकेले में बैठकर पढ़ेंगे ना, तो भी परमेश्वर का आत्मा इतना प्यारा है, वो आपका दोस्त बन के आपको वो सिखाएगा सच्चाई क्या है, और आपको सच्चाई में आने के लिए रास्ता देगा, मदद करेगा। वो हमारा मददगार है। हालेलुया। वो मनुष्यों को परमेश्वर में लाने के लिए भेजा गया पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर आप इस अध्यायों को पढ़िए। ये तो हमारी ओर से हम बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हैं इसे। और परमेश्वर निश्चित है पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करेगा कि हम अकेले में पर्सनली हमको किस व्यक्तिमत्व में वो बनाना चाहता है, किस ईश्वरीय रचना में वो हमको लाना चाहता है। आमीन। और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। यीशु नासरी के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you.